اور اس کے بعد اکانومی، اس کے بعد جو ایک چیز کو آپ مس کر رہے ہیں وہ ہے پالیٹکس. سب سے زیادہ ضروری ہے اس کو. آج ہم جس چیز پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوٹا ملنا چاہیے، ہمیں خصوصی نشست ملنا چاہیے، اس کنسپٹ سے آپ کو نکلنا ہوگا. وہ ایک ہی چیز ہے جو آپ دور کر سکتے ہیں، وہ آپ کی وومن لیڈرشپ. جب آپ پالیٹکس میں انوالو ہوں، جب آپ اس معاشرے کے ایک اہم رکن بنے گا تو آپ خود اپنے حفاظت بھی کریں گے، اپنے حقوق بھی آپ چھین کریں گے. اس کے لیے مخصوص نشستوں سے نہیں ہوتا. لیڈرشپ کی کوالٹی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایبلٹی پہ معاشرے کا حصہ بنے اور الیکٹ ہو کے اسمبلی. ہم نے بہت ساروں کو دیکھا وہ نوازنے کے لیے پارٹیوں میں یا اپنے اپروچ پہ تو آ جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کی نمائندگی، آئی ایم سوری ٹو سے میرے کچھ بہنوں کو برا لگا ہوگا لیکن وہ نہیں کر پاتے. لیکن ایک پازیٹیو سیاسی مائنڈ کے ساتھ اس معاشرے کا حصہ بنے. دیکھیں جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل کلیئر ان کا میسج بھی ہے، اس اسپیچ کو بھی میں بار بار سنتا ہوں کیونکہ ہمارا معاشرہ انفارچونیٹلی اسلامائزیشن کی طرف کچھ انفارچونیٹلی پرسنل شخصیات کی وجہ سے یا رشتہ داروں میں یہ سیاست جو چل رہی ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی المناک اور ایک بہت ہی نیگیٹو ہمارے معاشرے کے لیے رکاوٹ ہے. عورت کا ہونا ضروری ہے، اس میں ایک عورت بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک اچھے انسان کا بتایا انہوں نے 3 دفعہ ریپیٹ. یہ کبھی نہیں کہا کہ میرا حق نہیں بنتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ جس کو ووٹ کریں گے آپ کریں. میرا بیٹا اگر کسی کو ووٹ دے رہا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کو ووٹ دینا ہے جس کے لیے میرا بیٹا دے رہا ہے. یہ انسان کی حق خود ارادیت ہے. اس سے اچھا معاشرہ بنتا ہے. میں آج یہاں پہ اس لیے تھوڑی سی سیاسی بنتا نہیں ہے، لیکن اس معاشرے کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہم جن قوموں کو فالو کرتے ہیں وہاں ان کو ہمیں آج پریکٹیکلی فالو کرنے کی ضرورت ہے. آج امپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو ایران کو دیکھیں، وہاں آپ کو کوئی خصوصی کوٹے میں نہیں دیا جاتا. آپ کی ایبلٹی، آپ اپنا حق لے کر کام کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پاورفل جو میری قابل عزت محترمہ نے بتایا کہ امپاور کی بات کرتے ہیں تو سب سے طاقتور عورت گلگت بلتستان کا نام. پہاڑوں سے لے کر شہروں تک میں دیکھتا ہوں آپ کے گھر کی پوری اکانومی پر بیس کرتا ہے. آپ کا پورا گھر یہی چلاتے ہیں. صبح گھر میں جب 6 بجے سے اٹھ کر اپنے اسکول کے بچوں کو اسکول بھیجنا، ناشتے کی تیاری کرنا، گائے بکروں کو دیکھنا، جو ایک وومن ہے وہ ہے گلگت بلتستان. لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے، ہم مردوں کو ریکگنائزیشن، وہ آج ہمیں ضرورت ہے. آج چاہتے ہوئے کہ ہمارے تمام مرد حضرات، آئی ایم سوری ٹو سے، بازاروں میں سارا دن ڈھونڈے گا پھرے گا، واپس گھر جائیں گے تو پھر انہیں بیچاروں کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کرنا، یہ ایسا کیوں ہوا. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ الحمدللہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں دنیا کے عظیم ماؤں میں سے، عظیم بہنوں میں سے ہیں. اور طاقتور وہ بن کے جو کنسپٹ ہے، شاید گلگت بلتستان کی مثال پوری دنیا میں نہیں بنتا ہے. ہمیں اس بات پر فخر بھی ہونا چاہیے. آپ معاشرے کی ہر چیز میں لیڈ کر سکتی ہے، کیونکہ پڑھے لکھے مائیں ایک قوم کی تقدیر بدل سکتی ہیں. ہم اس معاشرے کو اس وقت تک یافتہ قوموں کے فیصلے نہیں لے جا پائیں گے جب تک ہم اپنی بہنوں کو امپاور نہیں کریں گے. امپاور کرنے کے لیے مردوں سے بھی زیادہ اپنے آپ پہ اعتبار کی ضرورت ہے. آپ کو جس معاشرے میں جس طرح سے عزت ہے، جو مقام ہے، الحمدللہ اس کو مزید آگے نکالنے کے لیے آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی کی ضرورت ہے. میرے لیے خطرہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ مردوں کی سیاست ہے، لیکن آپ کی لیڈرشپ سے بھلے آپ جیتے یا ہاریں، الیکشن میں حصہ ضرور. میری سجیشن، شاید آپ کے لیے کچھ مشکلات بھی آئیں گے آگے چلتے کیونکہ ہمارے کافی ریسٹرکشن سے، ہماری مینٹلٹی تھوڑی سی محدود ہے، تنگ نظر معاشرے سے ہم تھوڑے سے. لیکن جب آپ اس چیز کے امپلیمنٹیشن شروع کرے گا تو آپ دنیا کے بہترین لیڈرشپ کوالٹی گلگت بلتستان سے ہی خواتین کے اندر دیکھیں.
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ मौजूद हैं प्री बजट एनुअल एजीपी फॉर्मुलेशन वर्कशॉप विद गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट एंड CSOs की सेमिनार और वर्कशॉप में। ये वर्कशॉप ज़ाहिरन अपनी नौइयत की पहली वर्कशॉप है जो प्री बजट प्लान पर की गई है, और ये बल्तिस्तान की हिस्ट्री में और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के लिए इंतहाई खुशाइंद है। आज जितने उमूर के ऊपर जितने यहाँ पे शख्सियात बैठी हुई थी, जितने स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे, उनके जो ज़री ख़यालात हैं, उनकी जो उन्होंने जो नज़रियात और उन्होंने जो अपनी रिसर्च और अपने तजुर्बे के हिसाब से जो उमूर को पेश किया है, जिन उमूर को पेश किया, अगर उनको बजट में रखा गया और उनके तनाजुर में एक बजट बनाया गया तो इंशाअल्लाह यकीनन ये बजट वुमेन एम्पावरमेंट और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का इंशाअल्लाह बेहतरीन बजट होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कौसर परवीन है और आज मैं AKRSP की तरफ से प्री बजट एनुअल ADP फार्मूलेशन वर्कशॉप विद गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट एंड CSOs की वर्कशॉप में आई हुई हूँ। और आज यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक वर्कशॉप इन्होंने कंडक्ट किया हुआ था। मैं AKRSP का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमेशा से ऐसे वर्कशॉप हमेशा ये लोग कंडक्ट करते रहते हैं, और ये वक्त की भी अहम ज़रूरत है क्योंकि बजट आने वाली है। 10 जून को बजट रखा है हुकूमत ने, तो प्री बजट के हवाले से यहाँ पर डिस्कशन हुई, लेकिन हमारा जो GB का बजट है वो तो इंशाल्लाह जुलाई तक आ जाएगा। तो यहाँ हमारे मिनिस्टर राजा नासिर साहब भी बैठे हुए थे, तो हमारे ग्रुप्स ने बहुत अच्छी तरह चीज़ों को हाईलाइट किया कि प्री बजट में क्या कुछ होना चाहिए और गवर्नमेंट को किस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक निहायत अहम और टाइमली एक वर्कशॉप थी जिसमें प्री बजट के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर एक जगह पे जमा हुए हैं, और ये जो एक गैप है गवर्नमेंट लैंड डिपार्टमेंट प्लानिंग और जो हमारे नीड्स होते हैं, एरिया के नीड, डेवलपमेंट नीड्स, और उस गैप को फिल करने के लिए आज AKRSP ने एक स्टेक होल्डर वर्कशॉप का इनेकाद कराया जिसमें ग्रास रूट लेवल के कम्युनिटी के बंदे, डिपार्टमेंट के बंदे और प्लानिंग, और इसमें खुश कि प्लानिंग मिनिस्टर साहब खुद भी यहाँ मौजूद थे, और इसमें तमाम डेवलपमेंट नीड्स, GB के डेवलपमेंट चैलेंजेस और नीड्स और अपॉर्चुनिटीज़ को थॉरली डिस्कस हुआ, और डिफरेंट सेक्टर्स में जिसमें एजुकेशन है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, और हेल्थ सेक्टर के जो नीड्स है और डेवलपमेंट नीड्स के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और तमाम स्टेक होल्डर ने अपने आइडियाज़, नीड्स यहाँ पे शेयर किए, और उस हिसाब से एक प्रैक्टिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने वाला GB के डेवलपमेंट बजट को के लिए फीडबैक्स दिए, जो कि हमारे हायर अप ने बहुत प्रोडक्टिवली, पॉजिटिवली इनको लिया, और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि जो अपकमिंग हमारा जून का बजट है और प्लानिंग है, इसमें हमारा डेवलपमेंट नीड्स को जो है ना शामिल किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं AKRSP का शुक्रिया अदा करती हूँ। AKRSP किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमेशा से भी वो ख़वातीन के एम्पावरमेंट के हवाले से अपना किरदार अदा करती रही है, और मैं समझती हूँ कि आज के प्री बजट और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से इन्होंने प्री बजट का इनेकाद करवाया। और मैं समझती हूँ कि जितने भी इदारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ सेक्टर हो या जो भी हो, तो मैं समझती हूँ कि उनमें जो है ख़वातीन फोकस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिसमें यहाँ पे हमारी ख़वातीन ने सजेशंस भी दी। और मैं समझती हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बजट, क्योंकि हमारी ख़वातीन तालीम याफ्ता होंगी तो ही वो एम्पावर ख़वातीन कहलाएंगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और कराकम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में स्पेशली नीडेड बच्चियों को जो है वो सपोर्ट किया जाए, उसके लिए अलग बजट मुख्तस किया जाए। साथ साथ मैं समझती हूँ कि गिलगिस्तान की ख़वातीन जो ज़राअत से ज़्यादा मुंसलिक हैं, तो मैं समझती हूँ कि ज़राअत में कुछ ऐसा गवर्नमेंट इस बार कोई इनिशिएटिव ले जिसमें हमारी ख़वातीन को सपोर्ट हो, और ये अपने बलबूते पर अपने न सिर्फ ख़ानदान को मुस्तहकम करे, पूरे गिलगिस्तान को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करें। और हेल्थ सेक्टर में मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है डॉक्टर, हम इतना खर्चा करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स पर, डॉक्टर्स पर, तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के हवाले से ऐसे प्रोग्राम्स हों जो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही ख़वातीन के हवाले से बजट को जो है बढ़ाया जाए, स्पेशली गायनी के हवाले से हो। हमारी ख़वातीन को इश्यूज़ हैं, चाहे
न्यू नेट्रोलॉजी यूनिट है, MRI मशीन है, लेकिन उसके रनिंग का मसला है, अभी तक वो फंक्शनल नहीं हो सकी। तो इस हवाले के जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, मैं समझती हूँ कि उस पर हुकूमत को फोकस करना चाहिए और उनको उस पर काम करने के लिए मैं समझती हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ GB ट्रूथ का, क्योंकि आप लोग हर ख़वातीन के इश्यूज़ को उठाते हैं और आप लोग ख़वातीन के चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, मसाइल को उठाते हैं। तो आज का जो वर्कशॉप था, ये बहुत अहम वर्कशॉप है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट साइड पे बजट बनती है, लेकिन इसमें ख़वातीन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस पर तो आज तक कोई पूछते ही नहीं है। तो KRSP का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत एक अहम इश्यूज़ को उन्होंने डिस्कस के लिए उठाया और सामने लाया। तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि बंद कमरों में बजट बनने की बजाय ये जो ख़वातीन का बजट होते हैं, एनुअल बजट, वो अपने मुतल्लिक़ा शोबों के ख़वातीन से मिल के बने, ताकि इसका हम बेहतर तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया। हम फोकस करके हम काम कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक था, जो वर्कशॉप का जो मकसद था, वो ये था कि एक तो हम अपने जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, सिविल सोसाइटी के जो मेम्बरान हैं और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं, उनको हम एक जगह पे इकट्ठे करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि कौन सी ऐसा कुछ ऐसे चीज़ है जिनके लिए बजटिंग नहीं होती, जिनको नहीं होती, क्योंकि ये जाके मिनिस्टर लेवल पे या ADP लेवल पे अप्रूव कराने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटर्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हों, क्योंकि नक्शा तो यहाँ पे किसी ऑफिसर ने या इंजीनियर ने बनाना है बिल्डिंग का, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने या चीफ सेक्रेटरी ने तो नहीं बनाना। मैं खुद बहुत सारे ऑफिस में गया हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पे ख़वातीन और मर्द एक ही ऑफिस में है, 5-6 कमरे थे जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं एक जगह पे। एक ही वाशरूम था, वो भी ये कमरा क्रॉस करके दूसरा क्रॉस करके तीसरे कमरे के अंदर एक वाशरूम था, यहाँ भी मर्द